Praise the Lord, church. Welcome to God's presence this morning. And as we are meeting in our homes, we all might be in different places, in different situations. Some may be under stress with all the work, some may be stressed about financial situations, and there might be a lot of things going around in our minds right now. But I encourage each one of you that this time of worship that we have, that let's just leave everything, because nothing is going to change just by your thinking or by your worrying. And as God says, as Jesus told, that cast all your burdens onto Jesus and he will care for you, he will give you rest. And when we come into his presence, when we worship him, when we praise him, then all our worries, all our fears, although they may still remain, but we will not be burdened with it, because then it becomes the burden of Jesus. So this morning I encourage all of you to worship the Lord with just remembering that Jesus is God, and irrespective of your situation, that you would just praise him. Let's begin this worship with prayer. Heavenly Father, I come before your presence this morning. I thank you, Lord, that even though in this time, Lord, that there is so much of confusion, that there is so much of pain, there is so much of trouble, there is so much of uncertainty around us, Lord. We do not know how things are going to change. We began this year in a note looking forward to something great, something exuberant. We all would have had great plans, Father. But Lord, standing in the mid-year of Father, Lord Jesus, there are many of us who are standing hopeless. Many of us are in a situation where we do not know how this year would end, oh Father Lord. But we come this morning into your presence, Father Lord, only to seek your face, to know that you, in spite of all this storm, in spite of all this turmoil that is around us, that you are in control and that you are still on the throne, oh Father Lord Jesus. And we come with our hearts to your presence, O Father Lord, just to worship you, O Father Lord Jesus. I pray that you would accept our worship as a pleasing sacrifice, Father Lord, and that you would be pleased with our worship, O Father Lord. In Jesus' name I do humbly pray. Amen. तेरे शत्रु का निशाना
जैसे हमने गाया है ये गीत, गिन गिन के स्तुति करें, तो चाहे हमारे हम कई बार हम अपने जब हम अपनी आम ज़िंदगी में हम परेशानियों को गिनते हैं, हम देखते हैं कि कितने सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, क्या क्या है, हम नाप तोल करते हैं, क्या ज़्यादा है क्या कम है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि गिन गिन के हम स्तुति करेंगे। जब हम स्तुति करते हैं तो कोई भी शस्त्र, कोई भी शस्त्र जो हमारे खिलाफ बना होगा, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना का हो, वो हमारे खिलाफ कामयाब नहीं रह सकती, क्योंकि हम जब गिन गिन के स्तुति करते हैं उनकी, चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो, चाहे वो आज सुबह आप एक तंदुरुस्त शरीर के साथ जगे हैं, आपके घर में परिवार में आज खाना है, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए जैसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर आपको अंदर से एक विजयी बनाएगा और सारे जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगा। इसी बात से हम आगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि when you come into his presence and when you seek his face, he is faithful to answer all your prayers, he is a faithful God। and हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम आगे ये गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति करेंगे हम परमेश्वर का। यीशु
बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम ये वचन जैसे गाते हैं, तू है सच्चा खुदा और तू है परमेश्वर, तू है जिंदा और सच्चा खुदा। तो हम वो दोबारा गाएंगे और हम आज एक डिक्लेरेशन जैसे वील डिक्लेयर वंस अगेन ओवर आवर सिचुएशंस दैट आवर लॉर्ड इज अ लिविंग गॉड एंड इवन आवर सिचुएशंस विल कम बैक टू लाइफ बिकॉज आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड। तो हम दोबारा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे इस वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तू महान है और तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर। हम अपने हर मरी हुई परिस्थितियों में परमेश्वर तेरे जीव जो the breath of Father Lord, the life giving breath of Father Lord, we breathe it into our situation of Father Lord this morning and we reclaim every dead area of Father Lord Jesus। हम हर एक मरे हुए स्थानों को परमेश्वर तेरे नाम से उनको फिर से जी उठाते हैं परमेश्वर। जो हमारे अंदर मर चुकी हैं अभिलाषाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, जो कहीं मर चुके हैं, कहीं खो चुके हैं, हम उनको दोबारा जीवित करना चाहते हैं परमेश्वर कि हम तेरी सेवा करके अपनी सारी जो परमेश्वर जो तेरा प्लान है हमारी ज़िंदगी में वो पूरा हो सके परमेश्वर। हम सब कुछ आपके नाम से मांगते हैं। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I
Welcome everyone. Hope everyone had a good time worshiping the Lord. सभी का स्वागत है और आप सभी का जो है बहुत अच्छा समय बीता होगा आराधना और स्तुति में। So let's move towards this time of welcoming everyone. और आइए हम जो है आगे को जो है हम चलते हैं जहाँ पे हम सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार। You can turn to your family member whom you are watching with and say welcome to the house church. और आप जो है अपने जो घर वाले हैं उनकी ओर मुड़ के जो है कह सकते हैं कि आपका स्वागत है इस घर में जब हम कलीसिया को एक करते हैं। And today we are going to have communion. और आज जो है हम प्रभु भोज लेंगे। And communion is a time when we remember the perfect sacrifice. और प्रभु भोज जो है वो समय है जब हम यीशु मसीह के उस उत्तम बलिदान को जो है फिर से याद करते हैं। Today my message is victories through remembering, and how you can remember your way out of a defeat. और आज का जो मेरा संदेश है वो इस बात पे जो है आधारित है कि आप कैसे जो है जो विजय परमेश्वर ने आपको दिलाई है उसे स्मरण कर सकते हैं। At communion, Jesus actually wanted us to just remember the perfect sacrifice, remember His finished work, remember that salvation has been done, remember that you are a child of God, remember that He has taken care of all your sickness, pains and calamities on the cross of Calvary. और जब हम प्रभु भोज के सम्मुख आते हैं तो हम जो है उस समय इस बात को याद करते हैं कि किस तरीके से जो है यीशु मसीह के उत्तम बलिदान के कारण हम जयवंत हुए हैं, हमें उत्तम स्वास्थ्य मिला है, हम उस आशीषों के भंडार में आगे बढ़े हैं जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा है। So as we have communion, और जैसे कि हम जो है प्रभु भोज यहाँ लेते हैं, you can take bread or biscuit, whatever you have right now, और आपके पास ब्रेड बिस्किट जो भी आप उसे वहाँ ले सकते हैं, and you can break it, और आप उसे तोड़ सकते हैं, give it to your family members, or if you're alone, you can have it yourself. और आप अपने परिवार वालों को दे सकते हैं, अगर आप अकेले हो तो आप केवल खुद से ले सकते हैं। And take a cup. और उसके पीछे जो है आप वहाँ जो है उस कटोरी को लो जिसमें आपने कुछ रखा है पीने के लिए, and any liquid. और उसमें कुछ भी आप पेय पदार्थ रख सकते हैं। And just remember the perfect sacrifice made once for all on the cross of Calvary. और वापस जो है उस उत्तम बलिदान को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर जो है बहाया, उसे आप याद कर सकते हैं। So can we just take it together? आइए हम इसे जो एक साथ ग्रहण करें। Thanks for having communion together. आपका धन्यवाद है जो आप प्रभु भोज में एक साथ सम्मिलित हुए हमारे साथ। Let's move towards tithes and offering. आइए हम जो है दान और दशमांश में आगे को बढ़ें। Before we move towards tithes and offering, I just want to thank each one for really generous giving towards the help that we are doing for people who are stressed under COVID. A big thank you to you, and may God bless your resources. It almost seems like there is no point of having this section during the service, as everybody is just giving yourself. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी के उत्तम जो है आशीषों के लिए और उत्तम जो है दान के लिए, उदारता से दान देने के लिए। और आप सभी ने जो है जिस उत्साह के साथ में अपने जो है भेंटों को दिया है, इस अब हमें लगता है कि जरूरत ही नहीं है कि हम इस सेक्शन को आगे को लेकर आए जहाँ पे हम कहते हैं कि आप जब हमें देते हो, क्योंकि सब हर कोई जो है जैसा मौका मिलता है उस हिसाब से परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू करता है। But I realize that the tremendous blessing this portion of the message has in people's life. We just don't want to miss this also. और जैसे कि हमने देखा है कि मैंने इस बात को महसूस भी किया है कि लोगों के जीवन में इस संदेश के कारण जो उत्तम आशीषें आती है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको आगे को और आपको बताऊं। So I want to just encourage you from the word of the Lord. और इसलिए मैं आपको जो है प्रभु के वचन से आपको और उत्साहित करना चाहूंगा। That a lot of us have finance-based testimonies in our life. और मुझे यकीन है कि हम में से कईयों के पास जो है आर्थिक चीजों से संबंधित गवाहियां बहुत सारी उनके जीवन में हैं। And I want to just give you some time. Can you just remember some of those when you probably started tithing in your life, or you gave an offering gift and how it blessed you, or you gave something and you didn't get anything, but you understood the amazing provision that the Lord has overall done in your life. Can you just remember it just for 15 seconds? और इसलिए मैं आपके यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समय दूंगा कि आप जो है वापस से उस बातों को याद करो जब आपने शायद पहली बार जो है प्रभु के सम्मुख अपने दान दशमांश को लाना शुरू किया था, या फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बात की जहाँ पे आपको बहुत ही आर्थिक चीजों में बहुत उन्नति हुई हो। आपको मैं कुछ समय दूंगा जहाँ पे आप उसे याद करो, परमेश्वर का धन्यवाद कर सको। Can you remember that victory? आप उस जयवंत चीज को याद कर सकते हैं। Thank you, Father. Thank you, Jesus, for providing all the time, every time, over the years.
As we go into the offering song, we have a special person leading the offering song. और जिस तरह से हम भेंट के गीत में जाते हैं, हमारे पास एक विशेष व्यक्ति है उस गीत को गाने के लिए। Ira was part of the Faridabad church and she sang many songs at the time of communion and offering when we were having services at Milan, and she joins us from Bonn, Germany, where she is married with Arvind, and she joins us with this song. So let's just welcome her. बहन ईरा फरीदाबाद की कलीसिया का भाग थी और मिलन बैंक्वेट में जब हम सभा करते थे वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, जब भी भेंट के या हम प्रभु भोज के गीत गाया कर सकते थे। और इस समय वो यहाँ पर हमारे लिए एक गीत गाएंगी जो कि वो जर्मनी बॉन से गा रही हैं। उनकी शादी वहाँ पर भाई अरविंद के साथ में हुई है। And she doesn't know the Hindi language, but she knows this song. Praise God for that. वैसे उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती है, लेकिन उन्हें ये गीत आता है।
and let's move into the word of the Lord. आइए हम जो है परमेश्वर के वचन की ओर चलें Praise God, we have Sanchit today. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ And you know, he took time during the weekday to come all the way so that he can record this message. और जो है भाई ने यहाँ पे समय निकाला कि वो जो है सप्ताह के बीच में यहाँ पे आए ताकि हम इस मैसेज को जो आपके लिए रिकॉर्ड कर सके And it's good to have different translators. और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास में अलग अलग लोग होते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए So let's look into the word of the Lord, and today I want to share about of getting victory through remembering. और आज जो हम परमेश्वर के एक नए संदेश की ओर बढ़ते हैं और इस संदेश का शीर्षक है कि हम जय कैसे पाए याद करने द्वारा You know, a lot of times God has given us many tools in the Bible to claim our victories through. और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें से बहुत सारे अच्छे औजार वहां दिए हैं कि हम किस तरीके से जय को पाएं For example, the word of the Lord, or worship, or communion, or doing something that's written in the Bible and doing it and claiming that victory for yourself. जैसे कि परमेश्वर का वचन पढ़ना या प्रार्थना करना स्तुति करना आराधना करना या परमेश्वर की उन बातों को जानना जो हमें बताना चाहते हैं ताकि हम उस जय में आगे बढ़ सकें But today I'm going to look into a new way in which we can claim our victories, and that's through just reminding ourselves about certain things. और लेकिन मैं आपके पास जो है एक नए तरीके से जो है इस बात को लेकर आऊंगा कि हम कैसे जो है उस जय में आगे बढ़े याद करने द्वारा One of the most victorious persons in the Bible is Moses. और हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा जयवंत व्यक्ति के पूरे बाइबल के इतिहास में है तो वो मूसा है You know, and Moses was successful in taking the people out of Egypt and leading them into the promised land. He was not able to fully lead them, but he brought them, you know, almost 90% to the promised land. और हम देखते हैं कि मूसा अकेला एक ऐसा जो है वहां पे सफल व्यक्ति है जो अपने लोगों को इजराइल को जो है मिस्र देश से निकाल कर जो है लगभग उसने जो है जो परमेश्वर ने जो वाचा का देश बनाया था वहां तक उनको वहां अगुवाई में लेके गया And in that process, he uses this tool to get victories by constantly reminding God about the history he has made with Israel, the history he has with God himself. और वहां हम देखते हैं कि जब उन्हें वो निकाल कर लेके जाए वो हर बार जो है एक ऐसे औजार का वहां इस्तेमाल करता है जो कि यादगारी है परमेश्वर को याद दिलाता है ताकि वो जो है जयवंत में और आगे को बढ़ सके So let's move into Exodus chapter 32. और आइए हम जो है वहां पे निर्गमन और उसके 32वें आयत को जो वहां पढ़े You don't need to turn to it, you will have the verses on top. और आपको जहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है और निर्गमन जो है उसका 32वां अध्याय आपको वहां ऊपर दिखने लगेगा And if you look at Exodus chapter 32, we find that God is really angry with Israel and he wants to destroy them. और हम देखते हैं कि निर्गमन उसके 32वें अध्याय में जो है परमेश्वर जो है अपने लोगों से बहुत क्रोधित है और वहां उन्हें नष्ट करने पर And what does Moses do is Moses uses this new weapon to defend the people. और हम देखते हैं कि मूसा जो है एक नए हथियार का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने लोगों की जो है रक्षा कर सके What does he do? वहां क्या करता है He gets before God वो परमेश्वर के सम्मुख आता है and he tries to remind God of all the promises in the past that has been made to the kingdom of Israel. और वहां पे वो जो है परमेश्वर के सम्मुख आके परमेश्वर को ये याद दिला रहा होता है कि जितनी वाचाएं परमेश्वर ने इजराइलियों से बांधी है उन सबका वो स्मरण दिलाता है And to that extent, he doesn't go by this generation only, not only the generation of Israelites that are with him. He goes to Abraham, Joseph, and he goes to Jacob, and he says that, Lord, remember your promise that you made to Abraham. Remember your promise that you made to Jacob and Joseph. और वहां पे जो है वो केवल वो लोग जो उसके साथ चल रहे उनके साथ जो उन्होंने परमेश्वर ने वाचा बांधी कि उसी को याद नहीं दिलाता वो और पीछे को जाता है और जो परमेश्वर ने वाचाएं अब्राहम से या फिर याकूब से या फिर वहां पे यूसुफ से बांधी थी उन सभी को परमेश्वर को वो याद दिलाता है You know, and he is successful. He gets victory. और वहां पे हम देखते हैं कि वो जो है सफलता को हासिल करता है और वहां पे वो जयवंत होता The है Lord doesn't destroy all the और Israelites. वहां पे परमेश्वर जो इजराइलियों को नष्ट नहीं करता You know, I find that this is very good. You know, what Moses is doing is he's trying to jot down, he's trying to remember his history with God and also the past history of Israel with God. And what he does is whenever a calamity happens and when people sin, he gets before God and he constantly reminds God of all the covenant relationship he has spoken to people in Israel. और हम देखते कि मूसा जो है वहां पे क्यों सफलता को हासिल करता है क्योंकि वो जो है वापस से जाता है याद करने की कोशिश करता है देखने की कोशिश करता है कि कहां परमेश्वर ने जो है लोगों के सामने वाचा बांधी है और इस बात को जो परमेश्वर को
बार बार स्मरण दिलाता है कि देख तेरे लोग ऐसे हैं, तूने उनके साथ ऐसी वाचा बांधी, और इस बात को स्मरण करवाने के द्वारा वो देखता है कि उसने जय को हासिल किया। You know, it almost goes to God and says that, you know, what you said once cannot go wrong now. So whatever you have said, you have to do it. और वहां पे वो परमेश्वर को इस तरीके से याद दिला के कहता है कि परमेश्वर जो आपने बात कही है वो गलत नहीं हो सकती है, और जो आपने बात कही है आपको उसके अनुसार ही अपने लोगों के लिए करना होगा। I think Moses has got this very good philosophy. और मुझे ऐसा लगता है कि मूसा के पास में एक बहुत अच्छी फिलॉसफी वहां पे जो है उपलब्ध है। You know, and what is his philosophy? वहां पे उसकी वो फिलॉसफी क्या है? And his philosophy is that if I have a history with God, or if he has a history with us, he has to go back on that history if we just remind him of what history had he already had with us. और वहां पे इस बात को उसने समझ लिया है कि अगर हमारा इतिहास परमेश्वर के साथ में कुछ है, या परमेश्वर ने हमारे साथ कुछ ऐसी बात की जो कि हमारे लिए वो एक अच्छी और इतिहास वाली बात हो गई, तो हमें परमेश्वर को ये स्मरण दिलाना है कि परमेश्वर आपने जो हमसे पहले जो काम किया था वापस से जो मेरे जीवन में ऐसा ही कुछ करो। You know, he does that again in Numbers chapter 14. और वापस से यही काम मूसा जो है गिनती और उसके 14वें अध्याय में वापस से करता है। Rather, if you see the Old Testament, many of God's prophets pray like this: "Oh Father of Abraham, you know, oh Father of Jacob." You know what they do is they constantly remind God of the covenant He has already made with His people. और हम देखते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के जन जो है जब हम प्रार्थना करने को आते हैं तो इस बात का इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, हे हमारे अब्राहम के पिता, हे हमारे याकूब के पिता, और परमेश्वर को स्मरण दिलाते हैं कि वो क्या है। You know, in Numbers chapter 14 also Moses does the same thing. You know, he constantly reminds God of all the promises he made with the Israelites, of all the times he helped the Israelites. You know, what he does is he tells them that you told us that you will be with us, you will be as a pillar, you provided water, you know, you took us out of the land of Egypt, and every time you have done this, you have made a history with us. How can you forget all that history and discard your people right now? और वहां पे हम देखते हैं कि मूसा क्या कर रहा होता है। मूसा जो है परमेश्वर को स्मरण दिला रहा होता है कि परमेश्वर देखो, आप हमारे साथ में हमेशा साथ साथ रहे हो, आप हमारे साथ में खंबे की तरह साथ रहे हो, आपने हमें जो है पानी जो है आपने हमें दिया है, आपने हमें विपत्तियों से बचाया है, आपने हमें अपनी आशीष में लेकर चला है। और बार बार मूसा जो है परमेश्वर को ये बात याद दिलाता है। Most of the people who are listening to me right now, you have already got a history or a testimony with God. और जितने लोग भी मुझे यहाँ पे आज सुन रहे हैं, उनका कोई ना कोई एक इतिहास या उनका कोई ना कोई एक अतीत की बात ऐसी जो परमेश्वर के साथ उनकी जुड़ी हुई है। Can you become like Moses and go back to the Lord and claim all that promises? Can you tell the Lord that, Lord, you did this to me? You know, and I'm not getting success in that area right now, but you have already done it. That's my history with you. Can you repeat it? और वहां पे जो आप मूसा की तरह वापस आप जो है परमेश्वर के पास आप जाके कह सकते हो कि पिता परमेश्वर, आप मेरे संग हमेशा रहे हो, आपने मुझे जय और सफलता पहले ही मेरे इतिहास में अतीत में आपने मुझे दी है। अब मैं यहाँ पे शायद सफल नहीं हो पा रहा, अब मेरे पास में शायद कोई ऐसी बात है जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, परंतु आप वो जो इतिहास करने वाले परमेश्वर हो, आपने जो मुझे विजय और जो जय पहले दिलाई वो मुझे आप अभी भी दिलाओ। You know, one of the things good with God is He is not like most of the politicians. और जो सबसे अच्छी बात जो है पिता परमेश्वर के साथ में यह है कि वो किसी पॉलिटिशियन या नेता के समान नहीं। You know, politicians make a covenant or make a deal and then they forget about the deal. और ऐसा होता है कि कोई एक नेता या पॉलिटिशियन जो है वहां पे जो है लोगों के साथ में एक वाचा बनाता है, और उस वाचा को लेकर वो कभी न कभी फिर वो भूल जाता है। You know, but our God remains the same forever and ever, and if you claim a testimony back in your life, He remembers that. लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके साथ में कोई वाचा बांधी है, परमेश्वर ने आपके साथ में कोई वहां पे प्रॉमिस बांधा है, तो वो जो है अगर आप उसे परमेश्वर को याद दिलाते हो और उसके लिए जो है आप वहां से परमेश्वर से कहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करता है। You know, when I sit down to pray sometimes, और कई बार जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, I jot down all the major things that have happened in my life from 1988. और मैं जो है वहां पे जो है उन बातों को याद करने लगता हूं कि जितना भी परमेश्वर ने मेरे साथ में कार्य करना शुरू किया है 1988 के बाद से। You know, till 1988 I don't, before that I don't remember very well, but after 1988 I remember a lot of things, and I jotted down. You know, I jotted down 1990 I accepted the Lord Jesus as my Lord and Savior. 1992 my mom passed away, yet my
yet my heavenly Father really protected me, and He gave me a very intimate time in that year. Then in 1994, I appeared for my 10th exam, and I passed when I was looking to all. I was not good in studies and had real tension in my mind. In 1996, when I appeared for my 12th exam, I had compartmental. I just write it down for every year what the Lord did in my life, so that I can reclaim my testimony with Him. अब जैसे कि मैं जो है जब अपने प्रार्थना के समय जाता तो परमेश्वर जैसे कि मुझे 1988 के बाद से जो भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, मैं क्रमानुसार जो है उसे याद करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मैंने लिख रखा है कि 1988 में कैसे जो है परमेश्वर ने मुझे चुना, और 90 में जो है कैसे मुझे परमेश्वर ने अपने चरणों में आगे लेके गया, और 92 में जब मेरी माता का निधन हुआ था, परमेश्वर ने कैसे मेरे संग रह के मुझे आशीष में आगे लेके चला, और उसी तरीके से जो है आगे को परमेश्वर ने मुझे मेरे एग्जाम्स में कैसे जो है पढ़ाई के समय में हर साल जो है परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ कोई एक जय की बात मेरे साथ हमेशा करता रहा. All the things that I have written down, and I have written down and credited God for it, and the Lord actually did it in my life. It has a personal history. I have a personal history with God with those events that I'm jotting down. और जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ बताई और जितना भी चीजें मैंने लिख के रखी है, वहां पे मैं देखता हूँ कि किसी बात को अगर मैंने परमेश्वर को इसका जो है वो कहा है कि परमेश्वर के द्वारा ये बात हुई, तो मैं कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत जो है रिश्ता परमेश्वर से बनाता हूँ उस बात को पूरा करने के लिए, उस बात के जयवंत होने के लिए. And my list goes on, and how He helped in my college when I had flunked, and then He made me supernatural ways to pass through a evaluation, and then how I got my first job, how I got promoted as a team leader, then an assistant manager, and then later on how God gave me different breakthroughs, how God made a covenant with me about my health, and I have not visited a doctor for 12 years now. I write this down and I claim that. Why I claim that? Because that's my personal history with God. That's my association with Him, and with that association I claim my present. और वहां पे जब इन सारी बातों को मैं लिखना शुरू करता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत बड़ी जो है सूची वहां बन जाती है, और हर सूची में मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो है मेरे साथ एक व्यक्तिगत रूप से जुड़कर वहां पे उस इतिहास को रचा है, जो कि मेरे जय का इतिहास है. चाहे वो मेरे किसी न किसी एग्जाम में जो है आगे बढ़ने का हो, चाहे जब मैंने अपनी नौकरी को पहली बार पाया और नौकरी में मैंने पदोन्नति पाई हो, या कैसी परमेश्वर ने जो मेरे वाचा बांधी कि आज 12 साल होते हैं और मैं एक भी बार डॉक्टर के पास में नहीं गया. इन सारी बातों में मैं देखता हूं कि एक व्यक्तिगत जुड़ाव है जो कि परमेश्वर के साथ में, और वो सफलता के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वहां रखने के लिए. I want to encourage you to write down your testimonies. इसलिए मैं वहां पे आपको जो है प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने जो है उन गवाहियों को लिख ले, or just write it on the laptop. या फिर आप चाहो तो उसे लैपटॉप पे लिख सकते हो. Don't go very long, because you would get bored about it, but just one line, just remember what the Lord did in your life and write it down, and then you can use it as Moses is using. As Moses has everything, he has anyways written down Genesis, Exodus, the first 5 books he has written down, so he knows it, and that's what he does is every time when a calamity hits Israel, he tries to point out all the things that the Lord has already done, and he wants to claim everything back. और वहां हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपको मैं उत्साहित करूंगा कि आप जो है अपनी उन गवाहियों को लिख ले. जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा लिखें, आप जो संक्षिप्त में लिख सकते हैं, जिससे कि आप जब उसे वापस को पढ़े तो आप उत्साहित जो अपने आप को महसूस करें. क्योंकि हम देखते हैं कि मूसा ने भी जो कि शुरू की 5 किताबें बाइबल की, चाहे वो उत्पत्ति निर्गमन हो, उन सब में यही बातें परमेश्वर की लिखी, और जब कभी इस्राएलियों के ऊपर कोई विपत्ति पड़ती थी तो इन बातों को जो उसने लिखा है परमेश्वर को स्मरण दिलाकर जो है उससे उन सारी वाचाओं की पूर्ति जो है और जयवंत में आगे को चलता था. Okay, now many people will ask me that does God forget? Why do we have to remind Him? He is all knowing. He remembers what happened in 1990. He remembers what happened in 1992. He remembers what happened in 1994. He remembers what was my marks in 1996 and how did He supernaturally help me to pass. All these things He remembers. Why do we have to go back and remind Him of all that? और ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई लोग मुझे पूछे तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सारी बातों को भूल जाता है? क्योंकि वो तो हमारे साथ हमेशा ही था. उसे पता है कि भाई मेरे साथ मेरे जीवन में 88 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, 94 में जो क्या हुआ, इन सारे समयों और कालों में मेरे साथ में क्या हुआ है वो तो परमेश्वर हमारे पास था और सारी बातों को जानता. तो इसका मतलब क्या मुझे बार बार परमेश्वर के पास स्मरण दिलाना जरूरी है? And He also knows all the miracles He did in my life. और परमेश्वर को जितने भी चमत्कार उसने मेरी जिंदगी में किया है, परमेश्वर को सारी बातें
वो पता है। Why do I have to go back to him to remind? पर क्यों ऐसा है कि मुझे वापस से जो है जाना पड़ता है उन सारी बातों को परमेश्वर को याद दिलाने के लिए? You know, I want to tell you that God made human beings in His own image. मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपनी ही स्मृति में बनाया है। You know, He knows everything, और वो हर बातों को जानता है, but He constantly wants to engage in a conversation. पर वो चाहता है कि हम जो है लगातार उसके साथ में जो है एक बातचीत और एक वार्तालाप की जो है स्थिति में हमेशा उसके साथ में रहें। And that engagement is not only present time, that engagement brings out points of the past and your history with Him. और वो जो वार्तालाप है वहां पे केवल इसलिए नहीं कि हम बस एक दूसरे से जुड़े रहे, परंतु इसलिए है ताकि हम दोनों के बीच का जो जुड़ाव है, चाहे वो आगे की बात हो, चाहे वो पीछे के इतिहास की बात हो, उसके द्वारा हम जुड़ते रहें। One thing Facebook does is, sometimes it throws up pictures which are 7 years old, or 5 years old, or 10 years old, and it tells you to repost it. It suggests so that you can repost. And when you repost, you somehow feel that the people involved in that picture, you remember them, and there's a new emotion flow in your body. You relate with that picture in a new style. You relate with that incidents in a new style. All the reunions that happens, college reunions, you try to relive what has already happened. And when God made human beings in His own kind, we understand that He's also like that. He wants to relive the moments when He did miracles for us. He wants to relive, get involved, emotionally involved, get nostalgic about the times when He made a covenant relationship with us. और वहां पे हम देखते हैं कि फेसबुक जो है, आपने देखा हो कि आपके कुछ पोस्ट कुछ बताता है कि 7 साल पहले, 10 साल पहले या कुछ समय पहले की पोस्ट है, जैसे वो आपसे पूछता है कि क्या आप इसे अपने लोगों के साथ वापस से जो है बांटना चाहेंगे। और तब आप जब उन पोस्ट को देखते तो आप देखते हो कि अच्छा, इन दोस्तों के साथ इस जगह पे हमने कुछ अच्छा समय बिताया था, और आप वहां पे एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना उत्तम समय जो है उस समय मैंने बिताया था। ठीक वैसे ही जो है परमेश्वर के साथ भी जब आप इन बातों को रखते हो, देखते हो, परमेश्वर को बताते हो कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में जो है अद्भुत ऐसे कार्य किए जिससे मैं वापस आपको स्मरण दिलाता हूं, तो एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ साथ जो है एक ऐसा जुड़ाव जो परमेश्वर चाहता है कि उसके और आपके बीच में वहां वो जुड़ने लगता है। Whenever I spiritually need a nourishment, I remind the Lord of 2011 January when I received the Holy Spirit baptism. I tell the Lord that, Lord, you made me go into a conference. In that conference, I was filled with the Holy Spirit. You remember how you touched me, how you further started more ministry through my life because of the touch of the Holy Ghost. And that helps me to reconnect. That helps me. It's not just a mental positive thinking. It's involving God in a history that you already have with Him. और जब कभी मुझे जो है वहां पर देखिए मुझे आत्मा में और भरना है और आत्मा में जो है इन बातों को और वापस से जाना, तो मैं वापस जो है उस दिन को याद करता हूं, जनवरी 2011 के उस दिन को, कि मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, परमेश्वर ने वहां मुझे अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया था। और उसको जब मैं याद करता हूं तो परमेश्वर से जो है वो वापस से उस बात से भर जाता हूं। परमेश्वर के द्वारा उस बात को स्मरण करके परमेश्वर को कहता हूं कि परमेश्वर तू मेरे संग है, तो मुझे वापस से भरता है। Okay, now let's look into the book of Acts. और हम वापस से परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं और हम प्रेरितों के जो है अध्याय में से देखते हैं। We won't read anything, हम वहां से कुछ पढ़ेंगे नहीं, but I want to tell you certain details. लेकिन मैं आपको वहां पे कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा। The book of Acts has 28 chapters. और जो प्रेरितों के काम है वो पूरे जो है उस किताब में 28 वहां पे अध्याय है। Now in 28 chapters, I find that 28 chapters are really less when it comes to all the acts that the disciples did after Jesus. It should be, a bigger book for me. और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो 28 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक में है, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने जितने काम किया उसको 28 अध्यायों में रखना जो है एक प्रकार से लगता है बहुत छोटा है, और मेरे हिसाब से उसमें और भी अध्याय होने चाहिए थे। And though there are very less chapters, 28 in number, और भलाई इस बात की कि वहां पे 28 अध्याय जो कि कम है गिनती में, yet in chapter 26, 24 and 22 we find certain repetitions. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो अध्याय 26 है, अध्याय 24 है और अध्याय 22 है, वहां पे एक प्रकार से कुछ बातों को निरंतर लिखा गया है। Why? Because Paul is giving his testimony, and in his testimony he is writing down, or he is speaking all the things which has happened to him in Acts chapter 9. और वहां पे हम देखते हैं कि पौलुस ने इस बातों को जो है लिखा है और एक प्रकार से गवाही के रूप में वहां पे लोगों को बताया भी है जो कुछ उसके साथ में हुआ है अध्याय 9 में।
In 28 chapters, when there's so much to write, why does Luke waste 3 chapters in repeating what has been written down in Acts chapter 9? और हम जब देखते हैं कि वहां पे जो 28 अध्याय है और वहां पे बहुत कुछ है बातों पर परमेश्वर के प्रेरितों के काम में लिखने के लिए, फिर भी जब वहां पे लूका ने पौलुस के उस बातों को लिखा तो वापस से उसे जो है उन 3 अध्याय में दोबारा क्यों लिखा? Why? क्यों? Because he wants to write Paul's testimony again and again, because that is the main history that Paul has with Jesus himself. That's the point of revelation. That's the point in which light appeared to him and his life got changed. And Luke doesn't have any problems in giving 3 more chapters to write that history that Paul had with God. और वहां पे लूका ने जो इस बात को इसलिए लिखा क्योंकि उसे उस बात को लिखने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं थी कि किस तरीके से जो है परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में एक काम को किया और एक प्रकाशन उसके जीवन में दिया, जो कि 9वें अध्याय में हुआ। उसको उसने बाकी के 3 अध्याय में वापस से इसलिए लिखा क्योंकि उसको इस बात बताने में उसको कोई भी संकोच नहीं है कि कैसे जो है एक इतिहास परमेश्वर ने पौलुस के साथ बांधा था और उसे बताने के द्वारा परमेश्वर की बातों को वो पूरा करता है। The testimony of Paul becomes his tool to get victory in front of Festus, to get victory in front of King Agrippa, to get victory in front of the Sanhedrin. What he is doing, he is not using any new tool. What he is doing, he is just reminding himself and everybody there what is his history with God, and his testimony becomes a tool of victory. और वहां देखते हैं कि केवल उसकी वो गवाही है जो वो हथियार या वो औजार बनती है, जिसके कारण जो है फुस्तुस के सामने वो खड़ा होता है और राजा अग्रिप्पा के सामने वो खड़ा होता है और सनहेड्रिन के सामने खड़ा होकर जो है बहुत ही मजबूती के साथ अपनी गवाही को वहां बताता है, और वही चीज जो है वहां पे उसे मजबूती और सबलता देती है। What is your testimony? तो आपके वहां पे जो है क्या गवाही है? What is your testimony regarding finances? What is your testimony regarding health? What is your testimony regarding relationship? How many times the Lord has already done these miracles in your life? Can you remind yourself about that? And I want to tell you, as you remind, you're also reminding yourself that if the Lord can do it once, you have lost all the reason to doubt him right now. और क्या आपकी वो गवाही जो परमेश्वर ने आपके साथ की, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे वो आपके जो है आर्थिक चीजों से मिलकर जुड़ी हुई, या फिर आपके वो जो है पढ़ने या फिर किसी ऐसी बात से जुड़ी जो कि आप जानते हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, और अगर परमेश्वर ने ऐसी कोई आपके जीवन में गवाही रखी तो आप परमेश्वर को जो है वहां पे स्मरण दिला सकते हैं और आप खुद उसे स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में एक वो बात कर दी है तो वो वापस से वो बात कर सकता है, और अब आप वो जो है वो बात आप अब नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वापस से कोई सफलता या कोई जैवत का कार्य नहीं करेगा। One of the things that Jesus said that the Holy Spirit will do is the Holy Spirit is going to remind us. और वहां पे जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो एक बात अपने चेलों से कही कि वही है कि पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाता रहेगा। And a lot of times we think that this reminding of the Holy Spirit would be more to do with the commandments of Jesus. और वहां पे जो हम कई बार देखते हैं कि जो याद दिलाने की वो बात है वो बहुत बार जो है परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है उन आज्ञाओं के विषयों में है। And that's true. और ये सही बात है। Because the Holy Spirit is the one who convicts us of all our sins. और क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें बताता है कि हमने क्या-क्या काम या फिर क्या-क्या पाप किए हैं। But I want to tell you that Holy Spirit not only reminds you of the corrective policies of God, or how He is nourishing you and how He is kind of trimming the unwanted stuff in your life, how He is convicting you with the word. The Holy Spirit is also reminding you about the times when God played an active role in your life, when He did a miracle in your life. He's also reminding you of the situations you were in and how He picked you up and pulled you out of that situation. हम यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है आपकी जिंदगी में जब रहता है और आपको जब काटता है, छांटता है या एक मार्ग पर सीधे तरीके से ले चलता है, और वहां पे आपको याद दिलाता है कि कैसे जो है परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आके जो है मुख्य रूप से आपकी जिंदगी में कोई कार्य किया था, उन बातों को ये याद दिलाकर आपको परमेश्वर के मार्ग में और परमेश्वर के साथ में जोड़ कर रखता है। So I want to encourage you that we have to start using this new tool of getting reminded of our past history with God, and use it as a warfare prayer to claim something in current time, just as the Old Testament prophets did. It does, just as people of God who were interceding constantly reminded God for this.
और वहां पे जो है मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप जो है ये जो औजार परमेश्वर ने आज हमें वापस से दिया है, याद दिलाया है कि हम किस तरीके से जो है अपने इतिहास में जाकर परमेश्वर को याद दिलाकर जयवंत जो है होने की बात में आगे बढ़ सकते हैं। इसको एक युद्ध की ललकार की तरह अपने जीवन में सदैव रखें ताकि हम जो जयवंत और जो जीत परमेश्वर देना चाहते हैं उसमें आगे को बढ़ सके। You know, turn to anyone in your family and say, do you remember everything that the Lord did in your life? और आप जो है वहां पे अपने परिवार के किसी भी सदस्य की ओर मुड़कर कहें कि क्या तुम्हें वो बात है कि जो परमेश्वर तुम्हारे साथ की थी वो याद है जब तुम जयवंत हुए थे। You know, that's why the time the Israelites came to the promised land, they were given instructions that have the Passover meal. What the Passover meal will do, it will remind them of the saving capability of our God. It will remind them that they were slaves one day and God brought them out of his powerful hand from the land of Egypt. और वहां पे इसलिए हम देखते हैं कि क्यों जो है वहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों को, इज़राइल को आज्ञा दी कि तुम फसह के पर्व को मनाना, क्योंकि फसह के पर्व को मनाने के द्वारा इस बात को हमेशा याद करते हैं कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है कि उसने हमें उस मौत के जो है चीजों से बाहर निकाला था और उन सारी विपत्तियों से बाहर निकालकर आज हम जहां है वहां रखा था केवल याद दिलाने के द्वारा। You know, why did Jesus institute communion? You know, he instituted communion so that we can be reminded of our salvation. We can be reminded about the shed blood. We can be reminded of the perfect sacrifice made once for all on the cross of Calvary. और क्यों वहां पे यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए प्रभु भोज को रखा, उसकी देह को और उसके लहू को रखा ताकि हम जब उसमें यादगारी में शामिल होते तो हम इस बात को याद करें कि उसने कितना उत्तम बलिदान हमारे लिए दिया। उसने कलवरी क्रूस पर जो है उस उत्तम बलिदान को देकर हमें जो है उसने जो है उन सारी बातों से बचा लिया जिससे वो हमें छुड़ाना चाहता था। I want to give you time to just remember right now. और इसलिए मैं आपको ये समय दूंगा कि आप उस बात को याद कर सको। You know, and I'm going to lead you in certain phases in which you can just remember where were you, what were you doing that time, how did God help. और मैं आपको जो है जब आप इस यादगारी के समय में आगे बढ़ोगे तो मैं आपको जो है चुनिंदा जगहों पे से जो है बोल के आपको बताने की कोशिश करूंगा जहां पे आप अपने उन बातों को याद कर सकते जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किए। Can you close your eyes right now? अपनी आंखों को हाँ बंद करें। Okay, can you remember certain miracles that happened in your life between the year 2000 to 2005? और आप जो है वहां पे याद कर सकते हैं कि 2000 से लेकर 2005 के बीच में जो है जो भी बातें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में की आप उन्हें याद कर सकते हैं। You know, some main thing that happened, where you saw the hand of God works supernaturally in your life. और कुछ ऐसी बातें आप वहां पे याद कर सकते हैं और जहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके जीवन में आके जो है उसने जो है आपको वहां पे आगे लेके गया था। Can you remind God that Lord, you did it that time, I need it again in 2020? और आप जो है वहां पे परमेश्वर को ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर तो उस समय मेरे साथ था, उस समय तूने मेरे लिए ये बात की थी, अब 2020 में तू मेरे लिए बात करने Or चाहता है। something that happened in your life where you were really terrible at that point of time and the Lord picked you up. और वहां पे हो सकता है कि कुछ ऐसे समय में जो है आप वहां पे हो जहां पे बहुत सारी चीजें जो है आपके खिलाफ में हो या फिर आप जो है उन चीजों में ना अच्छे हो परंतु परमेश्वर ने जो आपको वहां पे उठाया। I want to give you some time, 15 seconds. Can you just remember? और आपको जो है वहां पे कुछ समय दूंगा, 15 सेकंड आपको देता हूं ताकि आप उन बातों को याद कर सको। Okay, from 2006 to 2010, can you remember certain things that happened in your life where God sustained you, God helped you through, your powerful testimonies? Can you just remind yourself right now and remind God that, Lord, this is my history with you. This is how you have worked in my life. और वहां पे जो है 2006 से 2010 के जो है दौरान जो है परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जो कार्य किया जहां पे वो आपको लेके चला और आपने उसने जो है वहां पे आपको सारी संपूर्णता में जो है उसने आपको आगे बढ़ाया। I want to give you 15 seconds. अब मैं आपको 15 सेकंड पुनः देता हूं ताकि आप इस बात को याद कर सको। Just remember, thank and claim. और आप जो है वहां पे उस बात को याद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो और अभी के लिए जो है उसकी प्रतीति करो। Claim your victory through remembering. और आप जो है अपनी जय को जो है वहां पे उसकी प्रतीति करो याद करने द्वारा। In 2011 to 2015. और 2011 से लेके 2015 Anything you can remember.
आप कुछ भी जो है उस दौरान जो है याद कर सकते You हैं। know, a supernatural healing of your body. और हो सकता है कि बहुत अद्भुत तरीके से जो है अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने आपको जो है चंगाई दी हो, A job breakthrough. या हो सकता है कि उसने जो है आपको जॉब दी हो, A relationship restored. या फिर आपका कोई संबंध जो है उसने वहां पे परमेश्वर ने पुनर्स्थापित किया हो, Finding someone really new in your life. या फिर कोई नए व्यक्ति को जो है आपकी जिंदगी में आपने जो है वहां पे खोजा, Finding your husband or your wife. और हो सकता है कि वहां पे आपने पति या फिर आपने अपनी पत्नी को पाया हो, Having a new reconciliation with your family members. या हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों के साथ पुनः जो है नई रीति से जुड़ पाए, You know, or a time when somebody was born. या फिर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो है किसी ने जन्म लिया हो। Can you just remember, recollect? आप जो वहाँ पे याद करें और उस बातों को जो है पुनः से जो है सम्मिलित करें, And use that remembrance as a tool of victory. और आप इस यादगारी की बात को जो है एक औजार की तरह जो है अपनी जिंदगी में जयवंत होने के लिए इस्तेमाल करें। 2015 to 2000. और 2015 से लेके और 2020 तक के अब तक Can you just remind yourself of all the success stories that you have with your God? और आप जितने भी आपने सफलताओं को जो है पाया है, आप वापस से परमेश्वर के सब को याद कर सकते हैं, Become Moses right now. और आप मूसा की तरह बन जाए इस समय, Pray like him. और उसकी तरह जो है इन बातों को याद करें, Lord, this you have already done. और आप कहे कि परमेश्वर आपने इन बातों को पहले मेरे Lord, जिंदगी I में किया, throw this picture back to you. और वापस से जो है इसमें चित्र को आपकी ओर मैं रखता I हूँ, open it up before the heavens. और मैं जो है इसे खोलकर जो है स्वर्ग की ओर रखता हूँ, Re-interact with me. और आप जो है मुझसे पुनः बातचीत करो परमेश्वर। Lord, we want to bring some nostalgia back in our relationship. और मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में फिर से जो है वो एक बात जो दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप की तरह होती वो वापस से आए। You know, help us to just remember some good old times, Lord, and let me be excited about it today. और वापस से जो है मैं उन सारी अच्छी यादों को याद करता हूँ और तेरी भावनाओं में जो है आगे बढ़ता हूँ। And God bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करे। I want to encourage you. और मैं आपको जो है यहाँ पे उत्साहित करना चाहूंगा, Keep on writing down your history with God. और आप जो है अपने इतिहास को जो वहाँ पे लिखते रहिए परमेश्वर के सम्मुख। Your history with God are the best tutorials for you in the current crisis. और क्योंकि जो आपका इतिहास है वो सबसे अच्छा एक तरीका है चीजों को देखने का परमेश्वर के सम्मुख। God bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।